Hello friends, I am back with my new lecture and the topic of today's lecture is types of majority in Indian Parliament. Simple majority, effective majority and absolute majority. So, as you already know that for the resolution to be passed in Parliament, you require majority in the Parliament. As you already know that even to form the government, in the center or at the state level, you require simple majority. That is, and that majority is uh, one first past the post system, the person who secures the maximum number of votes. So majority, that is a different type of majority. But to form government in Lok Sabha, you require at least simple majority. That means you have to have the members in the parliament which is at least which is one notch greater than 50% of total membership of the house. So there are different types of majority to pass different types of bills in parliament. So government requires majority in Lok Sabha as well as Rajya Sabha to pass different type of bills in parliament, so that the bills which government introduces will be passed, unopposed, or will be passed easily in the parliament. So they are now, to pass different type of bills, you require different types of majority in parliament. So now in this lecture we will see what are those different types of majority and what type of bills or what type of resolutions will be passed using that majority. So today's lecture is going to be very interesting, as different types as we already know that majority is required, but I think it it is very enriching for you, that you will get to know different types of majority and what is the difference between different types of majority and why this majority is being used and what is the objective. Okay, so kindly bear with me in the lecture, and so I'll be making this lecture, I'll be explaining this lecture in a very simple and lucid manner, so you'll be understanding the difference between different types of majority. So start without you're doing much delay, I'll starting the lecture. Now, what is simple majority? Simple majority, I have already explained that the government requires simple majority in the parliament to pass to pass its resolution, to pass any resolution which is introduced, or to pass any motion which is introduced in the parliament. Government requires simple majority. Simple majority is simple, that majority of more than 50% of the members present and voting. So simple majority actually is 50% of the members present and voting, but government requires majority of 50% of the total membership of the house. Otherwise, it loses the confidence. It loses the confidence of the Lok Sabha. So, as you already know, that if 543, current strength of the Lok Sabha is 543, so government requires 272 at least, you know, the government, so that it is able to form the government at the central level or at the state level also. So simple majority is majority of more than 50% of the members present and voting. Now this is different, members present and voting. मतलब इसका ये है कि अगर 543 मेंबर्स मेंबरशिप है हाउस की और उसमें से 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो 400 मेंबर्स का 50% मेजोरिटी चाहिए, यही नो कॉन्फिडेंस मोशन में चाहिए. दैट मीन्स कि हम मान के चलते हैं कि 543 मेंबर्स पूरे के पूरे प्रेजेंट होंगे, और गवर्नमेंट जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, तो गवर्नमेंट 543 मेंबर्स में से 272 मेंबर कम से कम उसे चाहिए होंगे पास करने के लिए. बट अगर कम मेंबर्स प्रेजेंट है वोटिंग में, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कम मेजोरिटी चाहिए होगी. तो इट इज एक्चुअली 50% of the members present and voting, not the 50% of the membership of the house. 50%, this is simple majority, that is it requires 50% of the more than 50%. So 50% of 270 ये हो गया 1, but it is 1 greater than 271 which is 272. So now 552 total strength है लोकसभा की, but current strength is 543. So if 52 abstain from voting and 34 vacancies भी हम इसमें से हटा देते हैं, then simple majority is 552 minus 52 plus 30, that is 82, that is 470. इसको आप 2 से गुण भाग करो और 1 प्लस कर दो, तो ये आ गया 236. तो 236 अगर मेंबर्स प्रेजेंट हैं किसी बिल के सपोर्ट में,
तो वो बिल पास हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, वो मोशन पास हो जाएगा। और कौन कौन से मोशंस इसके थ्रू सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास किए जाते हैं? नो कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला, यानी कि गवर्नमेंट को 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी चाहिए। रेगुलर लेजिस्लेटिव बिल्स, रेगुलर बिल्स, प्रेसिडेंट रूल अगर पास कराना हो, दैट इज आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एडजमेंट एंड सेंसर मोशन जो पास होते हैं, अगर एडजमेंट मोशन पास करना हो, ये कोई सेंसर किसी मेंबर के अगेंस्ट आपको सेंसर मोशन निकालना लेना लाना हो। इलेक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर के इलेक्शन के लिए, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एटसेट्रा, इन सब के इलेक्शंस के लिए, इन सब मोशंस को पास करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दैट इज सिंपल मेजोरिटी, दैट इज 50%, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। कितने प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट का देखोगे मेजोरिटी, मेंबरशिप से कोई मतलब नहीं। इफेक्टिव, वेरी very very it is very required, it is required actually, or very important to understand what is effective majority. Effective majority is absolute minus vacancies, absolute majority में से वैकेंसीज हम माइनस कर देंगे, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी? सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से अलग है। सिंपल मेजोरिटी था 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। एब्सोल्यूट होता है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि अगर मेंबरशिप 552 की है, विच इंक्लूड्स वैकेंसीज ऑल्सो, सो 552 by 2 दैट इज 271 plus 1 that is 272, so that is the absolute majority. So effective majority absolute minus vacancies, यानी कि absolute में वैकेंसीज हम इंक्लूड करते हैं, इसमें वैकेंसीज हटा देंगे। तो 552 में 50 वैकेंसीज हैं अगर, तो 502 में आप इफेक्टिव मेजोरिटी ले लीजिए, दैट इज 252। तो 252 आपको पास करने के लिए चाहिए रेजोल्यूशन। और सो इट मीन्स दैट द मोशन स्टैंड्स पास इफ इट इज पास बाय मोर देन 50% ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। देन मेंबर्स मतलब जो कि वैकेंसीज को हटा के हैं, एब्सोल्यूट में से वैकेंसीज माइनस कर देते हैं। और कौन कौन से मोशंस इससे पास होते हैं? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना हो तो राज्यसभा में 243 राज्यसभा स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा, सो 243 में से वैकेंसीज हटा के टोटल अब आपको उसकी मेजोरिटी देखनी है। सो दैट इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। एब्सोल्यूट मैंने ऐसे ही बताया आपको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी अब अलग अलग टाइप की है। आर्टिकल 249 टू 312 के तहत एब्सोल्यूट मेजोरिटी अलग है, 368 के तहत अलग है। कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो 368 के तहत जिनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, प्लस हमें रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए। स्टेट रेटिफिकेशन में 50% जो भी हमारे स्टेट्स हैं इंडिया में, उसकी 50% स्टेट्स कम से कम उसको सपोर्ट में होना चाहिए उस रेजोल्यूशन के, तो वो बिल पास माना जाएगा, रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। और आर्टिकल 61 के तहत एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो डिफरेंट टाइप की एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 249 312 मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। 249 है कि आपको कोई भी सब्जेक्ट, अगर ऐसा स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है और अगर पार्लियामेंट चाहती है, तो अगर पार्लियामेंट उस पर कानून बनाना चाहती है किसी भी सब्जेक्ट को, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, तो अगर राज्यसभा उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को पास कर देती है, that it is expedient, that it is in the expedient, or it is in the interest of the nation that the parliament must make a law on that subject which is mentioned in the state list, then it is pertinent enough for parliament to make the law on that subject. So that is article 249. article 312, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देती है तो कोई भी एक स्टेट ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है राज्यसभा, अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास कर देती है। तो ये 249 और 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे IAS है, IPS है, तो दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन सच केसेस इज दैट, अब क्या है एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन सच केसेस?
2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। सिंपल में था 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, इसमें 66% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग है, not less than 2/10 or majority of more than 2/3 members of the present members present and voting. So that is absolute majority. So absolute majority in such cases is that the motion be passed by majority of 2/3 of the members present and voting. So total strength अगर 552 है तो total members present अगर 450 हैं तो present and voting. Absolute majority required is 2/3 of 450, that is 300 plus 1, that is 386. तो 301 members कम से कम, अगर राज्यसभा के 301 मेंबर्स 249 और 312 आर्टिकल के तहत अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो अगर 312 के तहत अगर पास हो जाते हैं तो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस डायरेक्टली क्रिएट हो सकती है, और अगर 249 के तहत ये पास कर देती है तो फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून, स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है एज पर 249 एंड 312। अब 368 के तहत एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? 368 के तहत एक तो यही है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो मैंने आपको बताया था पहले, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो दोनों इंक्लूड कर दीजिए आप, 249 एंड 312 भी इंक्लूड कर दीजिए, और 50% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस आप इंक्लूड कर दीजिए। तो दैट इज एब्सोल्यूट एक्चुअली मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। सो टोटल स्ट्रेंथ 552 है, टोटल मेंबर्स 450 हैं, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज 2/3 इंटू 450, 301, और टोटल और उसके हिसाब से मेजोरिटी ऑफ 50% के हिसाब से 276 प्लस 1, हाँ, सो 276 प्लस 1 दैट इज 277। तो अगर 301 पास कर देते हैं, क्योंकि 277 लेस है 301 से, सो अगर 301 पास कर देते हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास माना जाएगा, ठीक है ना। तो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर कुछ आपको पास करना है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के लिए आपको ये मेजोरिटी चाहिए, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर और कैग के लिए भी आपको रिमूवल, इनके रिमूवल के लिए भी आपको यही एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। रेटिफिकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना चाहता है या अबोलिश करना चाहता है तो उसको ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अपने यहाँ पास करना होगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा तो क्रिएशन और अबोलिशन हो जाएगा। अब इसके अलावा रेटिफिकेशन बाई स्टेट लेजिस्लेचर होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए 368 के तहत, तो रेटिफिकेशन बाई स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज बाई सिंपल मेजोरिटी। So absolute majority in such cases is that the motion be passed by majority of 2/3 of the members present and voting and majority of the 50% of the membership of the house plus simple majority चाहिए स्टेट में of the 50% of the members present and voting by the state legislature। तो एटलीस्ट 50% पास करने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट्स, और वो भी बाई सिंपल मेजोरिटी, एंड दैट इज द 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो 552 है अगर स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में तो वही 450, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज 2/3 इंटू 450 दैट इज 301, तो 301 सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस रेटिफिकेशन बाई स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसमें आपको यू रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368 विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग प्लस रेटिफिकेशन बाई सिंपल मेजोरिटी बाई द स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। दिस इज हाउ द रेजोल्यूशन स्टैंड्स पास्ड। और सो आप देख लीजिए 50% ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया मस्ट पास द रेजोल्यूशन बाई सिंपल मेजोरिटी, तो कम से कम तो सिंपल मेजोरिटी 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, सो कौन कौन से फीचर्स इसके तहत पास किए जाते हैं या अपडेट किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं पार्लियामेंट में। सो प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, फेडरलिज्म से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के इलेक्शन के लिए, इनके इलेक्शन कैसे होता है इसके तहत। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल में जितनी भी लिस्ट हैं यूनियन कॉन्करेंट स्टेट, उसके आपको सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, जो 368 को ही अगर आपको अमेंड करना हो, आर्टिकल 368 को,
तो उसके लिए भी आपको रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स प्लस 3/6 एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट चाहिए। तो ये सब प्रोविजंस है जिनके लिए आपको आपको बेसिकली फेडरल प्रोविजन विच इम्पैक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. So, for those provisions, you require ratification by states by simple majority, by half of the states at least, plus absolute majority as per Article 368. ठीक है? Which impact the center as well as the states. Now, the last slide, absolute majority as per Article 61, which is the removal of President of India. सबसे difficult है ये president को हटाना, क्योंकि require 2/3 of the total membership of the house. मेंबर मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ दी. सो 552 में से, और वैकेंसीज इंक्लूड करके है सब, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इंक्लूड्स दी वैकेंसीज. सो 552 का 2/3 हो गया, 372 + 1 373. सो 373 मेंबर्स रेजोल्यूशन के सपोर्ट में होने चाहिए to remove the president of India. So it is too difficult to remove the president because required 2/3 of the total membership. अभी तक 2/3 of the members present and voting था, ये 50% of the membership था, ये 66% of the total membership, which is so to remove the president require absolute majority as per Article 61. So this is total. This is the lecture. Simple majority, effective majority, removal of president and removal of speaker and deputy speaker. Simple majority, simple legislative, no confidence motion आपको निकालना है, simple legislative bills, money bill ये सब पास करने हो, ठीक है. तो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए. अदरवाइज एब्सोल्यूट मेजोरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन यू रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजोरिटी. 249(3)(1)(2) के तहत आपको चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. Then you require absolute majority as per 368, 2/3 of the members present and voting, plus total 50% of total membership, plus ratification वाला भी है इसमें, plus Article 61, 2/3 of the total membership. So this is all about the lecture of the all about the majority in the parliament, which is required to pass different type of motions in parliament. So this is very required. This is very important for you to understand and for you to remember. So this is all about the majority. In the next lecture I'll take another polity topic. Till then, wait for my next lecture, and kindly, if you like my lecture, kindly subscribe to my channel and don't forget to press the notification button and bell icon. Thank you very much.